Morning dear students, how are you? I hope you will be fine. You know very well which chapter is going on? Second chapter of history, the Russian Revolution. In the previous video we have discussed about the Duma and the economy also, and about the vast empire also, Russian Empire. And today we will discuss about in the first paragraph how the First World War impact यानी कि how the First World War affected to Russian Empire. So now we will see the First World War and the Russian Empire. Firstly we will see कि First World War broke out in between two powers. First World War broke out in which year? 1940s. Or which were the two powers mainly? Allies or Central Power. Who were in the Central Power? Germany. We can say that Germany, Austria and Turkey. They were called the which power? Central Power. And second Allies power यानी कि France, Britain and Russia. And after that Italy and Romania also joined. So it means First World War broke out in which year? 1914. And between two powers, Allies and Central Power. Who were in the Central Power? We can say that mainly Germany, Austria and Turkey. And in the Allies power, who were there? Mainly France, Britain, Russia, and after that Italy and Romania also joined. So now we will discuss how the First World War and the Russian Empire. Relation between First World War and the Russian Empire. Initially, in the starting, war was supported. Who were supported for the war? यानी कि ordinary people, soldiers were supported to the Tsar. And after that, they refused. Support to Tsar went down. What was the reason behind that? In the starting, people were supporting to the Tsar for the First World War. And after that, they refused. What were the reason behind that? Firstly, we will see. Tsar refused to consult the main parties in Duma. In the last video, we have discussed about the what do you mean by the Duma. क्या थी यहाँ पर एक consultative parliament. Consultative parliament. So it means for that war, Tsar didn't discuss with the Duma. और Duma किससे मिलकर बनी हुई थी? Conservative politician से मिलकर. Second, Rasputin. Who were the Rasputin here? Rasputin was a monk. Was the advisor to Tsar. ये कौन थे? Tsar को advice देने वाले. इन्होंने यहाँ पर क्या किया इन्होंने यहाँ पर जो ऑटोक्रेसी है वो उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? अनपॉपुलर कर दिया. और रासपुतिन क्या थे? एक मतलब रॉयल फैमिली को इन्फ्लुएंस करने वाले थे. बट ही इज नॉट ए गुड एडवाइजर. एंड थर्ड रीजन क्या था? वाई द पीपल्स डिडंट सपोर्ट टू द जार? जर्मन ओरिजिन ऑफ जरीना अलेक्जेंड्रा, जो निकोलस की सेकंड की जो वाइफ थी जरीना अलेक्जेंड्रा, बिलोंग्स टू विच कंट्री? जर्मन. तो इसके खिलाफ ही देर वर द थ्री मेन रीजन्स. फर्स्टली जार डिडंट कंसल्ट विद द Duma. Second, Rasputin monk was the advisor to Tsar and he made the autocracy unpopular in Russia. And German origin of Zarina Alexandra. So now, what were the high anti-German sentiments in Russia? कैसे लोगों को जर्मन के खिलाफ मतलब गुस्सा था? कैसे हाई सेंटिमेंट थे, एंटी थे जर्मन के? रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग. सेंट पीटर्सबर्ग क्या थे? जर्मन नेम. तो उसको उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया? एज पेट्रोग्राद. यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है, उसको चेंज करके इन्होंने क्या नाम दे दिया उसको? पेट्रोग्राद. शोड द हाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इन रशिया. द वॉर वॉज फॉट ऑन बिटवीन टू फ्रंट्स. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो टू फ्रंट्स पर लड़ा गया, मेनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट. बट व्हाट इज द डिफरेंस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट? कैजुअलिटीज वर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट कंपेरेटिवली टू द वेस्टर्न फ्रंट. यानी कि कैजुअलिटीज का मतलब जो मरने वाले लोग थे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में किस पर ज्यादा हो रही थी? ईस्टर्न फ्रंट पर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई द कैजुअलिटीज वर हियर? बिकॉज फ्रांस वाज आल्सो सपोर्टिंग टू द रशिया. तो फ्रांस किस साइड था? वेस्टर्न की तरफ. और दे वर फाइटिंग फोर्ट बिटवीन द ट्रेंचेस. वो खाइयों के बीच में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे थे. तो यहाँ पर कैजुअलिटीज क्या थी? वेस्टर्न साइड कम थी. और जो ईस्टर्न एरिया था जो किसकी तरफ आ रहा था? ये पार्ट रशिया की तरफ. वो क्या था? ओपन एरिया. तो यहाँ पर यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी ईस्टर्न फ्रंट में.
यानी कि मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा था, ईस्टर्न फ्रंट पर। तो इससे क्या हुआ, कौन हार रहा है, डिफीट हो रहा है यहाँ पर रशिया। तो डिफीट वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, हारते जा रहे हैं। जब एक चीज़ को अगर हमें लगे कि हम कोई एक उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो डिफीट वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, यानी कि वो सोल्जर्स को क्या करती जा रही थी, धीरे धीरे डीमोरलाइजिंग। तो यानी कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन रशिया, यानी कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अफेक्ट द रशिया। इन द फर्स्ट, रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, यानी कि जो रशिया आर्मी थी बैडली, बुरी तरीके से कहाँ हार गई, किस प्लेस पर, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, बिकॉज दोनों किस में आते थे, सेंट्रल पावर में। 7 मिलियन का मतलब क्या थे, 70 लाख कैजुअलिटीज डाइड बाय 1917, और जो वॉर है वो 1919 में एंड होगा, पर 1914 से लेकर 1917 अप टू हाउ मैनी पीपल्स डाइड हियर, अप्रोक्सीमेटली 70 लाख। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ रशियन आर्मी लीड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। अब अटैक हो रहा है इनके ऊपर, और जो यहाँ की जो आर्मी है, रशियन आर्मी, वो पीछे की तरफ जा रही, तो पीछे पीछे चलते क्या करे, जो अपनी क्रॉप्स और जो बिल्डिंग्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और जो उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग थे, तो कितने लोग रिफ्यूजीज बन गए वहाँ पर, 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख। 70 लाख तो यहाँ पर मरने वाले हो गए, और 30 लाख क्या हो गए, यहाँ पे रिफ्यूजीज हो गए। ये और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी रशिया के लिए। तो और आफ्टर दैट व्हाट हैपन, सोल्जर्स डिडंट विश टू फाइट सच ए वॉर, सोल्जर्स दे डिनाइड कि वी विल नॉट फाइट सच ए वॉर, कि हमें ये युद्ध लड़ना ही नहीं है, दे डिनाइड। सो एंड द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, खाली सोल्जर्स ने नहीं किया, दैट वॉर हैड ऑल्सो ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। हाउ, बिकॉज जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, जर्मनी ने कौन से सी पर कैप्चर कर लिया था, बाल्टिक सी। एंड रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज, और जितना भी सप्लाईज का मटेरियल था वो कौन से सी के थ्रू आ रहा था रशिया के पास, बाल्टिक सी। यानी कि फ्रांस है या जो इनके पार्टनर थे ब्रिटेन, वो कहाँ से, कौन से सी के थ्रू इनके पास सप्लाईज करे थे, बाल्टिक सी, बट इट वॉज ब्लॉकेड, यानी कि रोक दिया गया सप्लाईज यहाँ पे। एंड रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जो एबल बॉडीड मैन, जो एबल लोग थे, जितने भी वर्कर्स थे, काम करने वाले, सबको किसमें कर दिया, they were joined to war, and after that what happened, shortage of laborers, सभी लोग क्या हो गए, एबल बॉडीड मैन joined the war। जब सारे लोग यहाँ से निकलकर वॉर में चले गए, तो किसकी कमी आ जाएगी कंट्री में, शॉर्टेज ऑफ लेबर। और व्हेन द शॉर्टेज ऑफ लेबर विल ऑकर, तो व्हाट विल बी हैपन, स्मॉल वर्कशॉप्स वर शट डाउन, जो उनके छोटे मोटे कारखाने तो धीरे धीरे क्या होने लगे, बंद होने लगे। एंड रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज, कैसे, जो ग्रेन्स का जो मेन था, वर सेंड टू फीड आर्मी, जो ग्रेन का है वो मोस्टली ग्रेन कहाँ, किसकी फीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भेजा जाने लगा, आर्मी। अब क्या हुआ कंट्री के अंदर, सिटीज में जो फूड शॉर्टेज आने लगी, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ब्रेड एंड फ्लोर प्राइसेस बिकेम सो हाई, एंड आफ्टर दैट राइट्स, यानी कि विद्रोह स्टार्ट होने लगे, ब्रेड और जो फ्लोर की जो शॉप्स थी उनके ऊपर आपस में लोग दंगे फसाद करने लगे। And after that what happened, so it means the first world war had a devastating impact on industries. Russia had few industries, and on that supplies of industries were cut off due to war। और mainly किस सी की वजह से यहाँ पे कट ऑफ हो गया था, पूरा बाल्टिक सी की वजह से। Industrial equipment began to disintegrate rapidly and railway lines began to break down. All the able-bodied men were engaged in war, जितने भी able लोग थे किस में engage हो गए, war में। And what happened after that, which resulted in the shutdown of the small workshops were shut down, and grains were supplied to the army engaged in war। तो this created food shortage। तो यानी कि how the first world war had a deep impact on Russia। Now we will discuss the February Revolution। Now we will discuss the February Revolution in Petrograd, यानी कि हाउ द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद क्या था, वहाँ के कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। एंड देन ले आउट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पेट्रोग्राद, यानी कि हाउ दैट सिटी वॉज सिचुएटेड, क्या इसकी स्ट्रक्चर था। एंड दैट पेट्रोग्राद यानी कि दैट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ नेवा। विच रिवर फ्लोज हियर, रिवर नेवा। लेफ्ट बैंक, on the left bank of the river
fashionable areas, the Winter Palace, official buildings where Duma met, यानी कि all the officials buildings, fashionable areas and Winter Palace, यानी कि all the important buildings situated on the banks of the river left side, on the banks of the left side, on the river banks, river bank यानी कि right side, right bank यानी कि on the river of the bank. The worker quarters and factories located यानी कि left side all the fashionable areas, Winter Palace and the where the Duma met, that place was situated. On the river right side, on the banks of the river, the workers quarters and factories situated. Yeah, we can say that located. In the winter of 1917, the situation in Petrograd was very grim. यानी कि Petrograd situation was not good, very bad due to the mainly what is the reason behind that? Food shortage. What is the main reason for here? Food shortage. And why the food shortage here? Because of World War First. Because most of the food supplies where they have done for the armies feed. And second, the situation dissolve the Duma. Now what the ruler want to hear, what is the desire of the ruler here? जार he wants to यानी कि dissolve the Duma, यानी कि वो Duma को क्या करना चाहता था? Dismiss, भंग करना चाहता था. Now 22nd February को क्या incident हुआ? Due to the shortage of food, because of World War First, fell deeply in worker quarters, a lockout took place. यानी कि what happened? जो workers थे quarters में सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ हुआ? ड्यू टू फूड शॉर्टेज की वजह से वर्कर्स क्वार्टर्स. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन? लॉक आउट टुक प्लेस, यानी कि उन्होंने फैक्ट्रीज पर लॉक लगा दिया, उसमें काम करने से मना कर दिया एट ए फैक्ट्री. एंड दे हैव स्टार्टेड ए स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक स्टार्टेड बाय द वर्कर्स. नाउ वीमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक, यानी कि फर्स्ट टाइम वीमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट स्ट्राइक. तो दिस केम टू बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वीमेंस डे. और इस डे को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे. Now demonstrations reached at the center of the capital city, Nevsky Prospect. यानी कि at which place demonstrators जो स्ट्राइकर्स थे वो कहाँ पहुँच गए? धीरे धीरे सेंटर, यानी कि बीच में जो सेंटर था, और कौन से कैपिटल के प्लेस पर जो सिटी था वहाँ का? नेवेस्की प्रोस्पेक्ट. नाउ गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यूज. अब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्या लगा दिया? कर्फ्यू सिस्टम. नाउ डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स का मतलब दे मूव फ्रॉम दैट प्लेस एंड दे मूव टू द their particular area. Then they again came back. Now यानी कि गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, डेमोन्स्ट्रेशन केम बैक, वापिस चले गए. आफ्टर दैट they came back on that particular place on 24th and 25th February, and police and cavalry to keep an eye on them. अब इसके लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया? पुलिस एंड cavalry to keep an eye on them. How did the revolution broke out? यानी कि how the February revolution started in Russia. On 25th February 1917. On 25th 1917, what happened? The government suspended Duma. You know very well Duma. Duma क्या थी यहाँ पर? एक पार्लियामेंट. तो गवर्नमेंट सस्पेंडेड, और गवर्नमेंट who were ruling here? King Tsar Nicholas II. And after that what happened? Politicians criticized this. Politicians criticized this against, and demonstrators returned on the streets on 26th February. Demonstrators यानी कि जिनको उन्होंने खदेड़ दिया था, वहाँ से डिस्पर्स कर दिया था, अगेन डेमोन्स्ट्रेशंस केम बैक, यानी कि वापस कब स्ट्राइक के लिए आ गए यहाँ पर? ऑन 26th February. On 26th February, the police headquarters were ransacked and cavalry was called out again. अब cavalry मतलब जो सेना को वापस बुला लिया गया टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि यू शुड कम एंड कंट्रोल द सिचुएशन. बट व्हाट हैपेंड हियर व्हेन द cavalry केम हियर? बट द cavalry रिफ्यूज टू फायर अपॉन डेमोन्स्ट्रेटर. नाउ cavalry यानी कि आर्मी की सेना ने नाउ रिफ्यूज, डिनाइड कि वी विल नॉट फायर अपॉन द डेमोन्स्ट्रेटर. तो इट मीन्स आर्मी ऑल्सो स्टार्टेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग, यानी कि आर्मी ने भी यहाँ क्या कर दिया? किंग के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, विद्रोह. सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स, सोल्जर्स यानी कि आर्मी के सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो यानी कि यहाँ पर जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, फॉर्म्ड सोवियत और काउंसिल. व्हाट दे हैव फॉर्म्ड हियर? सोवियत, या वी कैन से दैट काउंसिल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स केम टुगेदर एंड व्हाट दे फॉर्म्ड हियर? सोवियत. अब ये बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत? सोवियत किसने बनाई? हु फॉर्म्ड द सोवियत? So what is the answer? Soldiers and the striking workers came together and they formed a Soviet, या we can say that council, यानी कि group of
a people. Or why it is called the Petrograd? Because that situation happened in the Petrograd city. So we can say that Soviet or council, yeah, we can say that Petrograd Soviet. After that, a delegations, and who delegations का मतलब a group of peoples, delegation मतलब a group of people went to meet the Tsar. यानी कि जो सोवियत बनी उसके कुछ लोग जो लीडर्स थे आए, एंड आफ्टर दैट दे मेट टू द जार, एंड हियर जार मिलिट्री कमांडर, हियर जो जार का जो मिलिट्री कमांडर था उसने भी क्या एडवाइस दी, हिम टू एब्डिकेट, कि अब आपको अपने सिंहासन से क्या करना होगा, रिजाइन देना होगा, एब्डिकेट यानी कि छोड़ना होगा ये सिंहासन आपको. ऑन 2 मार्च आफ्टर हिज एडवाइस व्हाट हैपेंड, द जार एब्डिकेट, जार ने अपना सिंहासन छोड़ दिया ऑन 2 मार्च. एंड आफ्टर दिस सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट. तो यानी कि आफ्टर दिस, यानी कि जब सिंहासन, यानी कि जार ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या बना, सोवियत लीडर्स और द ड्यूमा लीडर्स, क्योंकि ड्यूमा यहाँ पर क्या कर दी गई जार के द्वारा, सस्पेंडेड. तो यानी कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए, विच गवर्नमेंट दे हैव फॉर्म्ड हियर, provisional government. Which government they have formed here? Provisional government. That is the question ki who formed the provisional government. तो यानी कि Soviet leaders and the Duma leaders formed a provisional government. And after that they have formed here a constituent assembly on the basis of UAF, यानी कि Universal Adult Franchise. On the basis of Universal Adult Franchise, they want to make here one constitution, and for that purpose they made here constituent assembly. Now everybody can cast their vote. And finally February revolution brought down the monarchy. यानी कि in February revolution what happened, what is the main effect here, monarchy system brought down. यानी कि अब यहाँ पर कौन सा सिस्टम खत्म हो गया, monarchy system. और which government formed here, provisional government formed here. So we can see here that after that peasants and the soldiers revolutionaries, leaders press for a redistribution of land, and after that for what happened, land committees were formed and peasants seized land between July and September 1917. यानी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कमेटीज बनने लगी ताकि सोल्जर्स को, वर्कर्स को उनकी जमीन वापस दी जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए जुलाई से सितंबर के बीच में बाद में. एंड आफ्टर दैट it means broke down the monarchy system. The Soviets set up everywhere, यानी कि that council set up everywhere all over Russia. No political party was involved in February revolution, and in that February revolution no particular party यानी कि political party was involved. It was a combined efforts of the workers of the 50 factories along with women's. यानी कि हमने देखा 26 Feb को striking workers came out on the street, and after that women's also along with them. तो इट मीन्स किसका कंबाइन एफर्ट्स था, ऑफ द वर्कर्स ऑफ द 50 फैक्ट्रीज along with women who took up the leadership. So dear students, we have discussed about the February revolution. Now we will discuss about the how the October revolution broke out here in Russia. What were the situation create here? After February revolution, what happened in Russia? The Tsar abdicated and monarchy was brought down. जार ने अपने सिंहासन से त्याग दे दिया. What happened here? Monarchy system brought down. Then after that, the Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government. Which government they have formed here? Provisional government to run the country. Now Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of adult suffrage. यानी कि these were the mainly 3 points affected after the, and others were the points we can discuss here after the February revolution happened. Dominated by army officials, यानी कि army officials, soldiers also supported, and landowners and industries, यानी कि from there what happened, their land taken and given to the peasants, and restriction on public medias and association one removed. जो पहले क्या था before 9 February रिवोल्यूशन रिस्ट्रिक्शन था जो पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन यानी मीटिंग्स पर से वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया. नाउ सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर लाइक पेट्रोग्राद सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर. इन अप्रैल 1917 व्हाट हैपेंड, द बोल्शेविक लीडर यानी कि बोल्शेविक दैट वाज द मेन पॉलिटिकल पार्टी हियर
बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न्ड फ्रॉम एग्जाइल, यानी कि वो वापस अपनी कंट्री आ गई। इससे पहले क्या था, जार ने इनको कहा था कि अगर ये, क्योंकि खिलाफ थे जार के, अगर इनको अगेंस्ट थे, जार के खिलाफ बोल रहे थे, अगर इनको कहीं पे भी हमें व्लादिमीर लेनिन मिल जाता तो हम उसको पकड़कर बंदी बना लेते, यानी कि, और व्लादिमीर लेनिन क्या सोचा, मैं उनकी पकड़ में ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री से बाहर चले गए। बट इन अप्रैल 1917 ही केम बैक। ही बिलीव दैट इट वॉज ए टाइम फॉर सोवियत टू टेक पावर। इससे पहले क्या था, कौन सी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो चुकी यहाँ पर, प्रोविजनल गवर्नमेंट। बट लेनिन व्हाट आइडियाज गिव हियर, कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हु टुक पावर हियर, सोवियट्स टू टेक पावर, यानी कि सोल्जर्स और वर्कर्स ने जो एसोसिएशन बनाई है, सोवियत बनाई है, उनके पास में पावर आनी चाहिए टू रन द कंट्री। ही डिमांडेड 3, इन्होंने मेनली 3 डिमांड्स रखी। दीज डिमांड्स वर नोन एज द अप्रैल थीसिस। फर्स्टली, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुड बी ब्रॉट टू बी एन एंड। सबसे पहले इन्होंने क्या डिमांड की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसका क्या हो जाना चाहिए, एंड, खत्म हो जाना चाहिए। सेकंड, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, यानी कि लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रीज से प्रॉपर्टी है उनकी, जो भी फैक्ट्रीज है या उनकी जो लैंड है, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट, यानी कि शुड बी गिवन टू द फार्मर्स। थर्ड क्या डिमांड रखी, बैंक्स टू बी नेशनलाइज। नेशनलाइज का मतलब बैंक वर्क अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जैसे कहे उसके अकॉर्डिंग बैंक्स को काम करना चाहिए। यानी कि दीज वर द 3 डिमांड्स demanded by the Lenin. World war should be brought to be an end, land should be redistributed to the peasants, transferred to peasants, and bank should be nationalized. He also argued to rename Bolshevik party as Communist party. इन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम क्या रीनेम किया, बोल्शेविक पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी। टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम। क्यों इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी नाम रखा, क्यों, कनेक्ट विद आइडियाज ऑफ मार्क्स, क्योंकि ये पूरी पावर अब किसके हाथ में देना चाहते थे, सोवियत के पास। सोवियत किससे बनी हुई थी, मेनली वर्कर से। हाउएवर मैनी अदर मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थीसिस, एंड इन द स्टार्टिंग हिज पार्टी मेंबर्स वर आल्सो नॉट एग्री, दे वर आल्सो सरप्राइज्ड कि व्हाट इज सेइंग लेनिन, कि लेनिन ने क्या डिमांड रख दी है, क्या बोल रहे हैं। व्हाई, बिकॉज इट वाज नॉट ए राइट टाइम फॉर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। बिकॉज जो लेनिन की पार्टी के जो मेन लीडर्स थे वो भी क्या सोचते कि दैट इज नॉट ए राइट टाइम फॉर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टेड। अभी कंट्री में रन करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट का रहना जरूरी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इसलिए इन्होंने किसको सपोर्ट किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट। बट द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर आइडिया एटीट्यूड, पर धीरे धीरे मंथ्स में ऐसा क्या हुआ कि जिससे अक्टूबर रिवोल्यूशन हुई, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन से आते आते कुछ ऐसे आइडियाज इनके चेंज हुए, एटीट्यूड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिव रिवोल्यूशन रीजन्स हुआ। थैंक यू।